Jai Bharat, dear all Bachcha Party, dear all Advitiyans, I hope you are doing well. In our previous lecture, we discussed about the cytoplasma, its content, its composition, and the differentiated part of the cytoplasma, that cytoplasmic matrix, or it is also known as hyaloplasma, and the other one is cytoplasmic structure that includes organelles and many cell inclusions, right? Okay. Now, we are proceed further. The next part is a membranous bound structure, which is very much important organelles, and it is related with the protein synthesis and lipid synthesis, right? So we can say that almost all biochemical activity or metabolic activity which takes place inside the cytoplasma, it is directly or indirectly related with this organelles, and that organelles is endoplasmic reticulum, right? So let us start with this organelle, that is endoplasmic reticulum. If we talk about the endoplasmic reticulum, this endoplasmic reticulum first observed by a scientist Garnier, right? It is a name of scientist, not a shampoo, right? So Garnier was the scientist who first observed this organelle, and it is discovered by Claudy. So remember that if somebody asks you in exam that who discovered endoplasmic reticulum, at that time your answer should be Claudy, right? And who first observed this organelles, then it would be a Garnier, right? There are three scientists who gave ultrastructure. Ultrastructure means what? Ultrastructure means a different component which develop these organelles, and that identification of that different component in we can say that in electron microscopic image, right? So whatever the pattern of this structure, that is known as ultrastructure. Ultrastructure was given by three scientists, and they were Porter, Claudy, and Fulham, right? Three scientists, Porter, Claudy, and Fulham, who gave ultrastructure of endoplasmic reticulum. The term endoplasmic reticulum is nothing but the network which is present in a, we can say that the endoplasmic part means a part of cytoplasm, right? So it is known as endoplasmic reticulum, and this term was given by Porter itself, right? Who also gave ultrastructure. Okay. ER is present in all eukaryotic cell. So endoplasmic reticulum is present in all eukaryotic cell except two cells. One is germinal cell, right? Now what is germinal cell? See, germinal cell is a cell which undergoes a process of meiotic cell division and form a germ cell, right? Or we can say that it form a gametes. For example, in case of spermatogenesis, there is a cell, right, which is present in a gonads, in a testis, which undergoes a meiosis process. So that cell, which is a diploid one, and that undergoes a process of meiosis and form what? Haploid sperm. तो जो सेल का meiosis हो रहा है, that is known as a germinal cell. Same way यही केस जो है वो oogenesis में भी होगा. So that germinal cell is without endoplasmic reticulum. But here we need to remember that this cell has endoplasmic reticulum at the initial stage. When it gets mature, at that time that endoplasmic reticulum is wipe out, right? तो initial stage पे उसमें endoplasmic reticulum है. एक दूसरा भी example ऐसा है. For example, mammalian RBC. So see, mature mammalian RBC also do not have this ER, right? But it doesn't mean that in immature or at initial stage of the development of RBC that do not contain ER, that has ER. तो initial stage पे जब RBC develop हो रहा है, तब उसमें क्या होगा? ER होगा. तभी तो ribosomes होंगे, तभी तो क्या होगा? Protein synthesis होगा, तभी तो क्या होगा? Hemoglobin होगा, right? So RBC is mainly related with the exchange of gases, and that exchange of gases takes place due to the we can say that the respiratory pigment present inside this cell, and that is what? It is a hemoglobin, right? So if there is a globin, means a protein, that means this cell must have ribosomes. तो इनिशियल स्टेज पे ER होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा. लेकिन मैच्योर RBC में वो नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल में वो लिया है. Okay, next point is development of ER, and the number of ER is depending on the state and a stage of differentiation of cell. सेल जो है उसका डिफरेंशिएशन का कौन सा स्टेज है. सपोज इमेच्योर आरबीसी में है, मैच्योर आरबीसी में नहीं है, राइट. सो दैट शोज व्हाट
डिफरेंशिएशन स्टेज, उसके अकॉर्डिंगली हम ये बोल सकते हैं कि ER का डेवलपमेंट जो है वो होगा, राइट. स्टेट ऑफ सेल एज वेल एज वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन स्टेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन स्टेज ऑफ सेल. ओके, ER इज एब्सेंट इन एम्ब्रियोटिक सेल. एम्ब्रियोटिक सेल जो है उसमें ER जो है वो नहीं होगा बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर्ड प्रोटीन, राइट. ओके, सेकेंड थिंग, लेस डेवलप इन स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसमें भी ER जो है वो कैसा होगा, लेस डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वो उसे बना रखे होंगे, राइट. स्पर्मेटोसाइट इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जिसमें ये सेल जो है वो डेवलप होगा, और यही सेल जो है दैट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, और उससे ही क्या बनेगा, स्पर्म जो है अल्टीमेटली स्पर्मेटोजुआ वो जो है वो फॉर्म होगा. ओके, well developed ER is well developed in fully differentiated and mature cell. सारे mature cell हैं, fully differentiated cell हैं, उसमें क्या होगा, ER जो है होगा. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल सेल ऑफ पेंक्रियाज. अब देखिए पेंक्रियाज के केस में ऐसा है, पेंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड, राइट, दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन अ सेकेंडरी सेक्शन, कहीं ना कहीं पे वो आया होगा डाइजेशन में. ओके, so why pancreas is considered as a mixed gland? Because pancreas has two parts. One is the endocrine part and the other one is exocrine part, right? Out of this endocrine part is related with the secretion of hormones like insulin and glucagon, right? And that has a particular bunch of cell. उसको हम क्या बोलेंगे, isolates of Langerhans. वो हम बाद में देखेंगे. And the other part is exocrine part that secrete almost all digestive enzyme which can digest the all carbonic compound like digestion for lipid, digestion for nucleic acid, digestion of carbohydrate as well as digestion of lipid. And that is why pancreatic juice is considered as a complete digestive juice. Why it is called complete digestive juice? Because it has all enzymes which is required for the digestion of all carbonic compound. Okay, so if it has all kind of enzyme, that means the cell of pancreas has much amount of ER. क्योंकि एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बनेगा, रिबोसोम से. रिबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, ER के ऊपर, ठीक है. ऑल दो साइटोप्लाज्मा में भी होते हैं और दूसरे दो ऑर्गेनल्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दैट हैज their separate ribosomes as well, लेकिन मेनली कहाँ पे होंगे, on ER. चलिए, तो ये जो है these are the basic information regarding the endoplasmic reticulum. Now we are proceed further. ER forms 30 to 60% of cytoplasmic vacuolar system. तो पूरा साइटोप्लाज्मिक में जो वैक्यूलर सिस्टम जो है उसमें 30 to 60% जो है that is occupied by what, that is occupied by endoplasmic reticulum. And if we talk about the volume wise, right, 10% of total cell volume is made by what, endoplasmic reticulum, right. Okay, fluid present inside the endoplasmic reticulum is known as endoplasmic matrix, right. Fluid present in the lumen of ER. See, basically endoplasmic reticulum has three components. तीन components से endoplasmic reticulum जो बना है वो तीन component कौन सा है. फर्स्ट component जो है that is known as cisterning. अलग पेन लेते हैं, कौन सा है वो, cisterning. फर्स्ट कंपोनेंट जो है that is cisterning. सेकेंड कंपोनेंट जो है that is vesicles, and the third component was tubules, right. So these are the three components, cisterning, then vesicles and tubules. This all three components has lumen in it. Lumen means क्या, hollow part, right. But it is not, actually it is not hollow, it is filled with the fluid, and that fluid is nothing but the endoplasmic matrix. उसको हम क्या बोलेंगे, endoplasmic matrix. So all the components that include cisternae, vesicles and tubules that has a lumen in it, and that lumen is filled with the colloidal substance, and that is considered as the endoplasmic matrix. Okay, ER arises as evagination. This is the important word, evagination. See, if you remember the part of development of mesosome from bacterial membrane, तो bacterial membrane में हमने क्या बनाया था कि ये suppose bacterial membrane है, right? It shows invagination. वहाँ पे हमने क्या term use किया था,
Invagination means folds are developed but that will remain towards the inner side of the membrane or inner side towards the cytoplasma. इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? Invagination. क्या बोलते थे? Invagination. यहाँ पे क्या है? Evagination, right? लेकिन किसका? ER arises as evagination of nuclear membrane. तो ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाहर मतलब टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म क्या डेवलप हो रहा है? फोल्ड्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं. अगर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म फोल्ड जो है वो डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेजिनेशन. कोई भी सरफेस के बाहर डेवलप हो रहा है. अगर अंदर होगा तो इन्वेजिनेशन, बाहर है तो इवेजिनेशन, राइट? सो दिस इज द we can say that the endoplasmic reticulum is arises by evagination process of nuclear membrane. Evagination, right? बाहर डेवलप हो रहा है. Okay. Now, if you see the component of ER is made up of, as I said, by three component. One is cisternae, second one is vesicles, and the third one is tubule, right? Now, let us talk about individually all these three components. The first one is cisternae. The first one is what? Cisternae. If we talk about the cisternae, cisternae is the first component which is formed by evagination of nuclear membrane, right? So, this structure is nothing but the cisternae. This structure is nothing but the cisternae. And this cisternae, if you see properly, this cistern is studded with the ribosomes on the surface, right? This cisternae has ribosomes on its surface, and that is why this cisternae form what? RER, right? Means rough endoplasmic reticulum, right? Okay. Now, if we talk about the cisternae, these are narrow. Narrow means what? Narrow means we can say that the lumen is not larger, right? Lumen is smaller, and that is why it is narrow. And narrow in comparison of tubule, right? Tubule has broad lumen as compared to the cisternae. So the lumen is narrow, and it is unbranched tubular structure. देखिए ये जो structure है वो कैसा है? It is unbranched. Connected है, but it is unbranched structure, right? तो सारे cisternae जो है they are connected to each other, but they are not branched form. वो कैसा है? Simple tubular form है, right? Okay, and the lumen is narrow. They are always present near nuclear membrane, but obvious because it is formed by the evagination of nuclear membrane. So that is but obvious that will remain towards the nuclear membrane. ठीक है? Okay. They are interconnected. Branched नहीं है, but they are interconnected. And the diameter is about 40 to 50 micrometer. इसका diameter जो कितना होगा? 40 to 50 micrometer. 40 to 50 माइक्रोमीटर. कितना है? 40 to 50 माइक्रोमीटर. वापस चारों पॉइंट देखते हैं. They are narrow and unbranched tubular structure. They are always present near to the nuclear membrane, but obvious है क्योंकि वहां से वो फॉर्म हुआ है. And they are interconnected. Unbranched है, but they are interconnected, and the lumen is about 40 to 50 माइक्रोमीटर. डायमीटर जो इतना है. Okay, lumen नहीं डायमीटर. They are studded with the ribosomes. उसकी सरफेस पे क्या है? रिबोसोम्स है. एंड मेनली फाउंड इन द प्रोटीन फॉर्मिंग सेल. बट ओबियस है अगर ER की सरफेस पे रिबोसोम्स है एंड दैट रिबोसोम्स इज रिलेटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मींस दिस सिस्टनी और it is considered as a RER is mainly found in what? It is mainly found in a cell which are related with the protein synthesis or protein forming cell. So this is all about the cisternae. Now the next part is vesicle. See, this part which is studied with the ribosomes is considered as what? Cisternae. Okay. For example, आपने घर पे देखा होगा कि जब मम्मी जो है वो पूरिया बनाती है तो पहले क्या बनाती है? पूरिया जो है उसका जो पूरा जो फ्लोर होगा उससे क्या बनाएगी? वो एक बड़ा सा फ्लोर का जो है वो एक पार्ट बनाएगी. फिर उसका क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा, हाँ या ना? ठीक है. और वो जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वैसे ही यहाँ पे जो सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी जो है इट इज स्टडीड विद द रिबोसोम्स. मतलब सिस्टर्नी को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? इट इज नथिंग बट द RER. ठीक है. तो यहाँ पे हम लेबलिंग भी करते हैं. दिस पार्ट इज नथिंग बट द RER. मैं इसको RER भी बोल सकता हूं, या फिर वही पार्ट जो है वो क्या है? इट इज नथिंग बट द सिस्टर्नी, हाँ या ना? ठीक है. ओके. अब जैसे जैसे उसका फ्रेगमेंटेशन जो होता जाएगा वैसे वैसे वो एक वी कैन से दैट दे फॉर्म अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एंड दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्टडीड विद द रिबोसोम्स. और वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ER,
वेसिकल्स। वो क्या है? वेसिकल्स। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? सिस्टर्नी, एंड दैट इज ऑल्सो स्टडीड विद द रिबोसोम्स, इसलिए हमने उसको क्या कंसिडर किया? RER। ठीक है, RER जो है उसका क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन, एंड दैट फॉर्म व्हाट? वेसिकल्स। एक चीज यहां पे और आपको याद रखनी है, ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर। अब ये वेसिकल्स जो है उसके अंदर क्या होगा? वेसिकल्स के अंदर होंगे प्रोटीन होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ल्यूमेन जो है वो ल्यूमेन में प्रोटीन आएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय रिबोसोम्स। ठीक है, ये सपोज जो है वो सिस्टर्नी है, ये इसके ऊपर क्या है? रिबोसोम्स, और ये सिस्टर्नी में क्या है? ल्यूमेन। तो रिबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं वो प्रोटीन जो किसके ल्यूमेन में आ जाएगा? सिस्टर्नी। तो उसका मतलब ये है कि अब ये सिस्टर्नी में ल्यूमेन है। अब ये सिस्टर्नी जो उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, दैट मींस ऑल फ्रेगमेंटेशन और ऑल वेसिकल्स हैज प्रोटीन इन इट। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स जो हैं व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर दैट फॉर्म सिस फेज। सिस फेज किसका? सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी। ये स्ट्रक्चर क्या है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का जो फेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज सिस फेज। सिस फेज इज आल्सो नोन एज इमैच्योर फेज। इट इज आल्सो नोन एज इमैच्योर फेज। इमैच्योर फेज इसलिए क्योंकि उसके अंदर अभी भी जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है, दैट इन अ सिंपल फॉर्म। ग्रेजुअली वो प्रोटीन जो है दैट विल पास टुवर्ड्स द ट्रांस फेज। ये कौन सा फेज है? दिस इज द सिस फेज, राइट, एंड दैट विल ट्रांसफर और ट्रांसलोकेट टुवर्ड्स द ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, विच इज ऑल्सो नोन एज मैच्योर फेज ऑफ गोल्जी बॉडी। तो वहां पे सारे प्रोटीन जो है उसका मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन? व्हेन सी देयर आर 4 स्ट्रक्चर। If the protein is found in a simple polypeptide chain, it is considered as a primary protein, right? Then after it become a complex, it forms secondary, then tertiary, then quaternary. That quaternary protein is basically a active enzyme. So from this trans phase, there is a big vacuole which is released from here, and that vacuole contain almost all hydrolysis enzyme, and it is nothing but the lysosome organelle, right? So because of the fragmentation of cisternae, we form vesicles, and by the, we can say that by the joining of these vesicles, we form what? Golgi body. That Golgi body contain many contained in it, which is basically protein. उसका modification होगा, and ultimately it releases as a enzyme, active enzyme, as a enzyme in a lysosome. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्गेनल्स जो है एक भी दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक कौन सा? गोल्जी बॉडी, दूसरा कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा कौन सा? लाइसोसोम। और इसलिए इसको गर्ल सिस्टम भी बोल सकते हैं। गर्ल मतलब GIRL नहीं, गर्ल GERL। G स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड L स्टैंड फॉर लाइसोसोम। ठीक है, चलिए, तो वेसिकल्स जो है वो बेसिकली हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि वेसिकल इज नथिंग बट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सिस्टर्नी। ओके, वेसिकल्स, these are oval rounded structure or spherical structure, right? This is oval or rounded structure or spherical structure. Okay, they are also studied with the ribosomes because basically it is formed by cisternae, right? And the diameter, see, diameter is larger, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो छोटा सा ही फ्रैगमेंट हो, it could be a big फ्रैगमेंट ऑल्सो। तो वो वेसिकल जो कैसा हो जाएगा? साइज जो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 25 to 500 माइक्रोमीटर। देयर नंबर इज मोर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल, बट ओबीएस है, अगर प्रोटीन फॉर्मिंग सेल में अगर सिस्टर्नी ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वेसिकल्स भी ज्यादा ही होंगे, राइट? ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ना, यहां तक स्टडीड पार्ट जो है इट इज नथिंग बट द सिस्टर्नी। लेकिन उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है SER, राइट? दिस SER पार्ट इज एक्चुअली अ ट्यूब्यूल पार्ट। ठीक है, देखिए ये सिस्टर्नी जो है ग्रेजुअली व्हेन this ribosomes which is found in the surface of cisternae, right, due to the aging, now they are not capable to synthesize protein. So basically that ribosomes is detached from the surface of cisternae, detach हो जाएंगे। वो अटैच क्यों है? बिकॉज ऑफ वन प्रोटीन विच इज नोन एज रिबोफ्लेविन। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिबोफ्लेविन याद रखना ये। ओके, लेकिन जब ये रिबोसोम जब वहां से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, तब वही जो सिस्टर्नी जो है उसके ट्यूब्यूल जो है दैट बिकम ब्रांचेड एंड द ट्यूब्यूल ल्यूमेन इज बिकम बिगर। ठीक है, तो सिस्टर्नी का ल्यूमेन हमने क्या लिखा था? नैरोवर। इसका ल्यूमेन जो कैसा होगा? ब्रॉड।
ठीक है। दूसरा सिस्टर्नी कैसा था, अनब्रांच्ड, ये कैसा है, ब्रांच। तीसरा सिस्टर्नी जो है दैट इज स्टडीड विद रिबोसोम्स, ये कैसा है, विदाउट रिबोसोम्स, एंड दैट इज व्हाई ट्यूब्यूल इज नथिंग बट द SER, ठीक है। और अब सपोज ये तो मैंने प्लांट सेल बनाया है, सॉरी एनिमल सेल बनाया है, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोजिंग दैट अगर ये प्लांट सेल होता तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता पहले टर्शियरी सेल वॉल, अगर होता तो फिर क्या आता, सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद क्या आता, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद क्या आता, मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल वो तो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो जहां पे फॉर्म नहीं हुआ होगा उस पार्ट में से ये जो ट्यूब्यूल है दैट विल पेनिट्रेटेड एंड दैट पार्ट इज नोन एज पिट, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पिट बोलेंगे, ठीक है, ओके। और वो पार्ट जो है वो बेसिकली आगे जाके क्या बनाएंगे, सपोज वो आगे जाके बनाएंगे डेस्मोट्यूब्यूल, मतलब इसीलिए हम SER को क्या बोलते थे, डेस्मोट्यूब्यूल। वो पार्ट याद करो, प्लाज्मोडेस्माटा वाला। तो प्लाज्मोडेस्माटा में हमने क्या बोला था, द ट्यूब्यूल विच क्रॉस दिस पीट, राइट, एंड वी कैन से दैट देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। वो किससे डेवलप हो रहा था, ट्यूब्यूल से डेवलप हो रहा था। वो ट्यूब्यूल को हम क्या बोलेंगे, डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है, विच इज फाउंड इन द प्लाज्मोडेस्माटा पार्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्यूब्यूल जो है दैट इज विदाउट रिबोसोम, उसका ल्यूमेन कैसा होगा, ब्रॉडर, ये कैसी है, ब्रांचेड, ठीक है। चलिए ट्यूब्यूल दे आर वाइडर देन सिस्टनी, देखिए फर्स्ट पॉइंट आ गया, एंड दे आर ब्रांच्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया, डायमीटर इज 50 to 100 माइक्रोमीटर, वाइडर है तो डायमीटर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, एंड दे आर मोर नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जब हम सिस्टनी की बात कर रहे थे तब हम क्या बोल रहे थे, दे आर मोर नियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये फॉर्मिंग फेज है ER का, ठीक है। और ER जो है वो यहां से फॉर्म होता गया, सिस्टनी बनाया, इस साइड वेसिकल्स बनाए, फिर रिबोसोम्स चले गए, क्या बना गया, ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल जो कहाँ पे एंड होगा, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ट्यूब्यूल की बात करें दैट विल रिमेन टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर सिस्टनी की बात करें दैट विल रिमेन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। दे आर नॉट स्टडीड विद द रिबोसोम्स, ठीक है, और स्टडीड विद द रिबोसोम्स नहीं है, दैट इज बिकॉज वी कैन कंसिडर इट एज अ SER विच इज रिलेटेड विद द लिपिड सिंथेसिस, राइट। द नंबर इज मोर इन लिपिड फॉर्मिंग सेल, कौन से सेल में ज्यादा होगा, जिसमें लिपिड फॉर्मिंग सेल जो ज्यादा होंगे उसमें, ओके। अब आप अगर ध्यान से ER को देखिए तो ER का मेन दो पार्ट है, वेसिकल सही है लेकिन मेन दो पार्ट है, एक सिस्टनी, एक ट्यूब्यूल, एक RER, एक SER। अब देखिए RER जो है दैट विल रिमेन कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, SER जो है वो किससे कनेक्टेड है, दैट विल रिमेन कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है कौन, सिस्टनी, उससे क्या फॉर्म हुआ, वेसिकल्स, उससे क्या बना, गोल्जी बॉडी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद द गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी जो है उसमें से क्या होगा, मटेरियल जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज इट इज अ पैकेजिंग यूनिट, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो RER में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ही हो रहा है। तो वो जो प्रोटीन है दैट विल एक्ट एज अ एंजाइम, एंड द ऑर्गेनल विच रिक्वायर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP, or we can say the maximum amount of a enzyme to perform their metabolic activity, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनल्स जो है, जो सबसे ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रही है, तो वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका मतलब ये है दैट रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ एंजाइम, और मोर नंबर ऑफ एंजाइम फॉर्म बाय मोर नंबर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो हम ये देखिए लास्ट पार्ट जो है वो ध्यान से देखिए, लास्ट एक कंक्लूड सब्सटेंस सेंटेंस हमने लिखा है। कंक्लूडेड जो सेंटेंस है वो क्या है, ऑल थ्री एलिमेंट्स, कौन कौन से थ्री एलिमेंट्स, वेसिकल्स, सिस्टनी एंड SER या फिर ट्यूब्यूल, ऑल थ्री एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। तो ये सारे कौन कौन से, सिस्टनी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल, दे आर इंटरकनेक्टेड। और इसके अलावा किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ओके। ऑल थ्री एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर, एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म, मतलब तीन एलिमेंट, कौन कौन से तीन एलिमेंट, ER के, और वो तीन एलिमेंट कौन है, दैट थ्री एलिमेंट इंक्लूड्स व्हाट, सिस्टनी, then vesicles and tubules. They three are interconnected as well as they are connected with the nucleus, plasma membrane, Golgi body and mitochondria, and together this seven thing क्या क्या हुआ, nucleus, plasma membrane,
वो दो चीज हुए। तीन इसके ही हम वो बोल सकते हैं कंपोनेंट, कौन कौन से सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल, और इसके अलावा दो ऑर्गेनल्स, कौन कौन सी, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। टुगेदर दिस ऑल फॉर्म व्हाट, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम। याद रखना क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो तीन एलिमेंट ईआर के, और इसके अलावा ये जो हमने दो मेम्ब्रेन बताए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दो हमने बताए ऑर्गेनल्स, दैट इज गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने सिर्फ उसके कंपोनेंट्स लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ईआर जो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये लेक्चर जो आपने एंजॉय किया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज अद्वैत अचीवर्स। आगे आगे बहुत अच्छे लेक्चर्स जो आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल जो है होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेल वाला चैप्टर जो है वो ज़्यादातर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है उसमें 10-12 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाता है। आप ऐसा समझिए कि ये जो है वो हमें, आप ऐसा समझिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो चलेगा ऑलमोस्ट मिनिमम 25 लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि अगर सेल अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ जो समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज अद्वैत अचीवर्स। यू कैन डाउनलोड द ऐप अद्वैत अचीवर्स फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।